Alright, then today we are taking a look at what are trial, repeat and routine orders. This was in chapter 1 business letters. Trial order क्या होता है, routine order क्या होता है और repeat order क्या होता है. Anybody has any idea what is the trial? What is the word trial? का मतलब क्या होता है? What is trial? Yes, yes, what? पहले रिव्यू करते हैं, ग्रेजुअली करते हैं, कैजुअली. Supposing you have a new organization, you are setting up a new organization, a new office, and you have to order furnitures. So there are a lot of companies which will give you very good products. The first of all आप क्या करोगे? Will you order 100 or 50 chairs? बिना देखे सुने क्या 50 ऑर्डर करेंगे आप? आप कितने ऑर्डर करेंगे? एक ला के देखेंगे कि कैसा रहता है. ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रायल ऑर्डर. You want to see whether the chair is going to be comfortable or not for the organization. ठीक है, the trial order is when you want something or when you are going to a restaurant, आपकी there is a seminar and there is going to be lunch in the seminar and you have to arrange for 100 people, lunch for 100 people. तो किसी भी रेस्टोरेंट जिसको आप नहीं जानते हैं, व्हाट विल यू डू? आप 2 दिन 4 दिन पहले आप क्या करोगे? आप ऑर्डर करोगे. कितने 100 लंच के लिए ऑर्डर कर दोगे क्या पहली बार में? नहीं. आप क्या करोगे? यू विल ऑर्डर, दिस विल बी अ ट्रायल ऑर्डर. आप 2-4 लोगों के लिए लंच मंगा के देखेंगे, भाई 2-4, ताकि आप फीडबैक ले सकें कि यहाँ का खाना अच्छा है या नहीं है. अगर अच्छा नहीं है तो दे गो टू सम अदर रेस्टोरेंट, बट देन इफ द फूड इज गुड, आप 100 पीपल का लंच वहीं से ऑर्डर करेंगे. सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आर ट्रायल ऑर्डर्स? यू आर टेस्टिंग समथिंग, you are taking it as a sample whether this suits you or not. It can be any food you order, it can be any clothes you want to buy. You will not order 4-5 shirts at a time, but you will order only 1 or 2. Now this is probably the first order which you are going to place. Now इसको लिखेंगे कैसे आप? How will you write your trial order? ट्रायल ऑर्डर के पहले आपने कैटलॉग मंगा लिया है और कैटलॉग आपके पास है. सो आप क्या लेटर लिखेंगे? हाउ विल यू राइट? टेल मी. लेट मी नो कैसे क्या लिखोगे. So what will be the language?
If I say subject line, tell me what will be the subject. लिखो ना, write down. Now you already have written your name on the letterhead, the company's letterhead, the inside address, all is done. I'm starting with the subject line. The subject line is trial order for 5 shares. Or it can be anything. For vegetarian lunch. आपकी मर्जी, आप जो भी लिखे. तो alright. Now we'll write the salutation. Dear sir, please refer to our yes. ये माउस को क्या हो जा रहा है? Please refer to. Are you only copying down? Will you not speak? Please refer to a letter dated 2nd कोई बैक डेट का आप डेट लिख सकते हैं. प्लीज रेफर टू अ लेटर डेटेड 2nd October रिक्वेस्टिंग यू फॉर अ कैटलॉग. अच्छा, प्लीज रेफर टू योर लेटर. सॉरी, प्लीज रेफर टू आवर लेटर. अब लेटर का रेफरेंस भी इतना आपने डाला होगा ना. रेफरेंस क्या था आपके लेटर का? व्हाट इज द कंपनी? आपने मांगा है कैटलॉग, तो कोई रेफरेंस दिया होगा ना आपने. डियर सर, प्लीज सेंड अस द कैटलॉग so that it can enable us to order furniture from your organization. तब उस बंदे ने आपका कैटलॉग भेजा. कैटलॉग देख करके आप उनको फिर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं. दिस इज द 3rd लेटर जो आ रहा है. ठीक है, आपने भेजा कैटलॉग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप. वो लोग कैटलॉग भेज दिया आपको, और फिर कैटलॉग के देखने के बाद आप वहाँ उन लोगों को लेटर लिख रहे हैं कि मुझे ये मॉडल का ये चेयर चाहिए. ठीक है, so there has to be a reference letter, no? Please refer to our letter reference XYZ company, XYZ marketing MR 03. इस डिपार्टमेंट का 3rd लेटर था जो आपने भेजा था. कब भेजा था? 2nd October का.
So please refer to our letter, reference XYZ MR/3, dated 2nd of October, requesting you, requesting for a catalog. Do not write in capital letters. Some problem with the mouse and the keyboard. Okay. Please refer to our letter, reference XYZ MR/03, dated 2nd of October, requesting for a catalog. We are pleased to place an order for, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं फॉर 5 shares, मॉडल नंबर रहेगा ना, फॉर मॉडल नंबर व्हाट 10056 अब उनके कैटलॉग से देख के आप करेंगे 105 51 52 53, तो 51 52 तो 53 आपको पसंद नहीं आया, आपको 1056 पसंद आ गया है, तो वी आर प्लेसिंग एन ऑर्डर, वी आर प्लीज टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर मॉडल 1056, कलर ब्लू, साइज मीडियम। ये जो मॉडल नंबर, कलर एंड साइज विल बी ऑल डन इन अ टेबल फॉर क्लैरिटी, इजंट इट? ऐसे में क्लियर ही है, लेकिन ऑफिशियल लेटर में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो सेकेंड पैराग्राफ में क्या होता है, आप इसको आप प्लेस कर रहे हैं मॉडल नंबर 1056, कलर ब्लू, साइज मीडियम। Five chairs. Fine. आप चेक्स भेज रहे हैं या चेक्स बाद में करेंगे, आफ्टर रिसीविंग द गुड्स करेंगे, वट एवर, दैट हैज़ टू बी मैंशनड कि आप उसका पेमेंट, या आप पूछ सकते हैं हाउ डू यू वांट अस, हाउ डू यू वांट द पेमेंट, आप पूछ सकते हैं, या वी आर इंक्लोजिंग अ चेक फॉर, आप ये भी कर सकते हैं। मैंने पहले ही अब एडवांस आप चेक दे दिए हैं, बिकॉज यू नो द कैटलॉग में प्राइस भी लिखा रहता है, राइट? सो यू आर सेंडिंग मनी फॉर 5 shares, for 5 shares. 5 shares के कितने हैं, मतलब 60,000, हाँ, वॉट एवर, ओके, यू फिल इन, आप जो भी लिखना आप भेज सकते हैं। वी आर क्लोजिंग अ चेक फॉर
whatever. That is up to you. 1 lakh, 5 lakhs. ठीक है, अब whatever. ये जो मॉडल नंबर जो ऑलरेडी कैटलॉग में होगा, आपको पता है कि कौन सा चेयर का क्या प्राइस क्या है. ठीक है, ये आपको कब चाहिए वो भी मेंशन करना होगा लेटर में. आपने पढ़ा था कि जब आपको कुछ प्लेस कर रहे हो ऑर्डर, तो क्लियर होना चाहिए कि व्हेन डू यू वांट द गुड्स टू बी डिलीवर्ड. इट कैन बी डिलीवर्ड ऑन एनी वर्किंग डे फ्रॉम 9 to 5 before the 10th of November. So we would appreciate if the goods are delivered before the 10th So we would appreciate if the goods are delivered before the 10th of November 2021. On any working day, कहाँ लिख देते हैं? On any working day. We would appreciate if the goods are delivered on any working day before the 10th of November 2021. Thanking you. यहाँ पर नेम, नीचे क्या लिखेंगे? ENCL. मैंने क्या अटैच किया है? चेक किया है, तो ENCL चेक. मैम ऊपर करिएगा थोड़ा. ठीक है, did you understand how to write letter? Yes. और यहाँ पर आपका डेजिग्नेशन होगा, योर नेम, हाँ मैम वर्किंग के बाद क्या लिखा हुआ? वर्किंग के हाँ, बाद तो वहाँ लिखा हुआ है, तो डाला ज़रूरी है ना कि एनक्लोजर में मैंने क्या डाला है. ENCL क्यों लिखा जाता है? ताकि एनक्लोज्ड और क्या क्या है, सिर्फ एक चेक है. ठीक है, हाँ, लेटर में भी रहेगा और एनक्लोजर में भी ज़रूरी है. कोई चिट्ठी ऐसे नहीं भेजा जाता है, कुछ आपने चेक भेजा है या कुछ आप एक्स्ट्रा कुछ भेज रहे हैं, कुछ इनवॉइस आप भेज रहे हैं या कुछ आप एनीथिंग कैंसल चेक भेज रहे हैं, कुछ ही भेज रहे हैं, तो ENCL में लिखना ज़रूरी है कि आपने क्या भेजा. ठीक है,
में वो जो डेट डाली थी थोड़ा फर्स्ट वो कौन सा डेट है जो सबसे शुरू में डेट डाली थी? वो डेट वो आप मन से डालिए, आपको जो डालना है। सबसे शुरू वाला यस 3 अक्टूबर कौन सा डेट डाली? आप जानिए अपना। वो नहीं मतलब जिस दिन ऑर्डर करना है उसका है कि नहीं, ये चिट्ठी जो आप लिखेंगे आज की डेट लिख रहे हैं तो आज की डेट लिखेंगे ना। ये जो डेट है पहले का, कि मैंने 1 हफ्ते पहले लेटर लिखा है कि मुझे कैटलॉग भेजिए, उसका ये डेट है। ठीक है। प्लीज रेफर टू आवर लेटर रेफरेंस XYZ MR03 डेटेड 2 अक्टूबर। मतलब देखिए कि मैंने पहले जो लेटर लिखा था कैटलॉग के लिए इस डेट को, ये आज का डेट नहीं है। आज का डेट तो अभी आप लिखेंगे ऊपर में ना, नेम, डेट, रेफरेंस, इनसाइड एड्रेस, सब्जेक्ट लाइन से शुरू किए, वो सब अंडरस्टूड पहले का है। ठीक है। तो ये कब का डेट है? पहले का। रेफरेंस भी पहले का है, डेट भी पहले का है। आज का रेफरेंस कुछ और होगा। ठीक है। आज का डेट कुछ और होगा ऊपर में। आज का डेट क्या होगा? ठीक है, आज का डेट लिखो। पहले तो लेटर हेड आपका, वो लेटर हेड आपने बनाया नहीं, मैंने कहा था बनाओ। XYZ कंपनी का डेट लिखो यहाँ पे। सारा ब्लॉक स्टाइल। डेट लिखो, फिर रेफरेंस बनाओ। रेफरेंस के बाद ना होता है इनसाइड एड्रेस। रेफरेंस ये सेम रहेगा XYZ ऑब्लिक MR, ये भी सेम रहेगा। लेटर नंबर बदल जाएगा। आज हम दिस इज द 10th लेटर, तो हाँ ये आज का रेफरेंस है और ये उस दिन का रेफरेंस है, 2 अक्टूबर का रेफरेंस है। ठीक है। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? अब समझ में क्लियर हुआ? उसके बाद क्या लिखोगे? इनसाइड एड्रेस लिखो। लेटर हेड में तो एड्रेस रहता ही है। इनसाइड एड्रेस में किसका होता है? जिसको तुम चिट्ठी लिख रहे हो उसका एड्रेस होता है ना। तो लिखो तुम, राइट द इनसाइड एड्रेस। बोरिंग वर्ड। सेंटेंस एड्रेस बीच में भी लिख सकते हैं, लेटर हेड वाला बीच में नहीं लिख सकते, यही लिखेंगे आप। लेटर हेड बीच में रहता है, ऊपर में, सबसे ऊपर में लेटर हेड रहता है। आप बनाइए तो लेटर हेड, आपने बनाया ही नहीं, मैंने कहा था बनाओ। तो इनसाइड एड्रेस सब लिख रहे हैं। कौन सी कंपनी? गोदरेज कंपनी है। डियर मिस्टर विवेक शर्मा, हम क्या लिख रहे हैं? इनसाइड एड्रेस लिख रहे हैं। विवेक शर्मा क्या है? जनरल मैनेजर मार्केटिंग। आप लोग कुछ अपने मन से करिए ना, सब कुछ हमसे कराते हैं आप। Why don't you use your own head? I will not sit and write in your exam, no? तो बता ही तो रहे ना। GM, जनरल मैनेजर, what? गोदरेज। ये स्लिप कर जा। See? जनरल मैनेजर गोदरेज इंडिया लिमिटेड। और डेट नहीं और जगह नहीं हुआ क्या? बोरिंग रोड पटना।
ठीक है, अब यहाँ से हो गया सब्जेक्ट लाइन. Did you understand? Yes, ma'am. So what have we written today? We have written a trial order. Any question you have? Hmm? ये कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या इसमें? कुछ पूछ रहे थे तुम? मैम सब्जेक्ट के बाद जैसे वो लिखिए, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट बाद में लिखा रहता है. और डियर सर के पहले रहता है सब्जेक्ट. मैंने सब्जेक्ट तो लिखा था, क्या हो गया? मिट गया. ओह ये चला गया. यहाँ नहीं रहेगा? बाप रे बाप, ये यहाँ कैसे रहेगा? ये कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा बताइए? हाँ ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे. द फॉर्मेट शुड बी करेक्ट. यहाँ पर रहेगा. Did you understand? Yes, ma'am. Now don't tell me send this PDF to me. अब बना लिया तुम लोग ना? बना लिया. इसी तरह से अपना असाइनमेंट कॉपी बनाइए एंड स्टार्ट राइटिंग. तो आज हमने देखा है कि व्हाट आर ट्रायल ऑर्डर्स एंड हाउ डू यू राइट ट्रायल ऑर्डर्स. In the next class we will see how to write a repeat order and what is a routine order. कोई बता सकता है रूटीन ऑर्डर क्या होता है? अब क्या नीचे करें? अब तो हो गया. क्या देखना? नीचे कुछ नहीं है. We would appreciate. चलिए पूरी हिंदी बता रहे थे. प्लीज रेफर टू आवर लेटर डेटेड रेफरेंस. तो समझ गए आप कि पीछे प्लीज देखिए, इसके पहले मैंने लेटर लिखा था इस डेट को, इस रेफरेंस को, जिसमें हमने आपसे कैटलॉग मंगाया था. ठीक है, मुझे खुशी हो रही है कि हम 5 शेयर का ऑर्डर आपके कंपनी को दे रहे हैं. वी आर प्लीज्ड, वी आर हैप्पी. प्लीज सेंड मी 5 शेयर. नहीं, वो नहीं. वी आर हैप्पी टू. मुझे खुशी हो रही है कि हम आपकी कंपनी को ऑर्डर दे रहे हैं 5 शेयर का. ये कौन सा मॉडल नंबर है जो हमने ऑर्डर दिया है? मॉडल नंबर व्हाटएवर, मॉडल नंबर, साइज, कलर सब. और हम लोग एक चेक भेज रहे हैं 5 लाख का. हाँ, तो गोदरेज में आता है 1 शेयर 1 लाख का होता है. We would appreciate if the goods are delivered. आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस गुड्स को, हम लोग को खुशी होगी, अप्रिशिएट करेंगे कि आप लोगों ने अच्छा काम किया है जब आप, ताकि आप अपना डिलीवरी जो है मंडे टू फ्राइडे कर दीजिएगा, लेकिन 10 नवंबर के पहले. हम चाहेंगे कि आप 5 कुर्सी को भेज दीजिए 10 नवंबर के पहले. वी वुड अप्रिशिएट. नहीं,
यही तो अब सीखना है आपको, हमसे जो सीखना है ना, यही सब सीखना है। लेटर राइटिंग, बिजनेस लेटर्स, बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे सिर पे है। कम्युनिकेशन स्किल्स रिटन सिखाना, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जिस तरह से बता रहे हैं उसी तरह से आप लिखिए। और भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन धीरे 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 आप इसमें माहिर हो जाइएगा, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं, वी वुड अप्रिशिएट इफ यू कीप क्वाइट, वी वुड अप्रिशिएट योर कोऑपरेशन। मतलब अप्रिशिएट का मतलब मुझे अच्छा लगेगा, राइट। मैंने सर सारे क्लासेस में मैंने कह दिया है कि आपको सीखना हमसे है तो राइटिंग स्किल्स सीखना है, राइटिंग प्लस स्पीकिंग। इट्स नॉट दैट आई एम ओनली गुड एट राइटिंग, स्पीकिंग भी सीखना है। जिस तरह से बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन मेरा क्या है, टीचर्स का हमसे ही नहीं, मतलब कि हमसे आपको जो सीखना है। व्हाट आई कैन गिव माई बेस्ट इज कम्युनिकेशंस, रिटन, ऑरल, टेक्निकल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस एंड एक्सेंट, सब सीखना है। लेकिन माइंड सेट अपना सीखे रहेगा आपको कि हम कुछ सीखना है तभी। अगर माइंड सेट में कुछ और भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, आप हमसे नहीं पढ़ सकते। यहाँ ना इसको खाली करो। यहाँ अगर खाली रहेगा तभी कुछ जाएगा, मेरा बताया हुआ। लेकिन उल जलूल बात अगर दिमाग में है कि ये बच्चा हमको अच्छा लगता है, क्यों क्वेश्चन पूछता है, इसका मतलब बताइए, उसका मतलब बताइए, दिस इज वेरी गुड, इट मीन्स ही वांट्स टू लर्न। एंड आई वांट स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, ये नहीं कि बस बैठे रहें, 1 घंटा क्लास हो गया, चलो अब मैम चली जाएगी। आई डू नॉट ट्राई लाइक सच क्लासेस। जितनी क्वेश्चंस आप पूछेंगे उतना हमको लगेगा, उतनी आई विल अप्रिशिएट यू आस्किंग क्वेश्चंस। यू अंडरस्टैंड? तो इसके बहाने और लोगों को भी समझ में, चुपचाप बैठे रहते हैं। इस दुनिया में सर्वाइव करना है, अगर है बिजनेस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है, अगर आपको जॉब नहीं करना था तो बात कुछ और है। बट इफ यू हैव टू एंटर अ वर्ल्ड, प्रोफेशनल वर्ल्ड, you will have to improve your written communication plus oral. आप देखिए खुद, या प्रेजेंटेशन दीजिएगा ऑरल कम्युनिकेशन का एंड रिटन कम्युनिकेशन का, कि हस्ती क्या है, का स्टेटस क्या है। अब किसी कंपनी से लेटर आता है, ग्रामेटिकल एरर उसमें है, गलत लिखा हुआ है, तो हंसी के पात्र बनते हैं ना, कि कौन है, कैसी कंपनी है कि एक किसी भी जो चिट्ठी भेजा है उसको एक लाइन लिखने नहीं आ रहा, बोलने नहीं आ रहा। ठीक है, आप मेहनत करनी है, आपको करनी है, बाकी बच्चे भी मेहनत करके आगे बढ़े हैं, आप ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, जो सीखनी है समझ से, वो तो सीखना ही आपको है, चाहे आप रो के सीखिए, गा के सीखिए, हम लोग को भी पता है कैसे सिखाना है, ऐसे नहीं तो ऐसे तो सीख ही जाओगे। अगर आप फोकस्ड रहेंगे, आप आगे आगे ही बढ़ेंगे। फोकस नहीं रहेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग करते रहेंगे, देन यू विल बी वेयर यू आर, बिकॉज योर माइंड इज फुल ऑफ डर्ट, राइट। बट प्लीज, आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू, पूछा करिए, क्वेश्चंस पूछिए। मैंने आपको किताब भी पढ़ाया है, मैंने आपको एक्स्ट्रा भी नॉलेज दिया है, मैंने आपको आइडिया बैंक का भी आइडिया दिया है। आइडिया बैंक में आप लिखते नहीं हैं तो हमने आपको लेना शुरू किया सेल्फ वर्क, वो भी आपके सिलेबस से मुतालिक रखता है। ऐसे कहेंगे आइडिया बैंक लिखने के लिए तो तुम लोग नहीं लिख रहे हो, तो आई हैव कन्वर्टेड दिस इनटू सेल्फ वर्क, राइट। Did you understand? So I'm also saving this so that we can come back again in the next class on the same page and do what is
व्हाट इज ट्रायल लेटर? और ट्रायल लेटर के पहले अगर आप लेटर लिख रहे हैं, कैटलॉग मंगा रहे हैं, सपोजिंग इसी कंपनी में गोदरेज, द सेम कंपनी, कन्वर्ट दिस लेटर इनटू आस्किंग, रिक्वेस्टिंग फॉर अ कैटलॉग, ठीक है? मिस्टर विवेक शर्मा, GM, गोदरेज लिमिटेड, बोलिंगवुड, पटना। अब इनको आप लिख रहे हैं, प्लीज सेंड मी अ कैटलॉग, हाउ विल यू राइट? Everything will be the same. Subject will change. What will it be? Requesting for a catalog. तो उसमें क्या लिखेंगे? What will be the content? अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे आप, अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। I am so and so, writing for this company, on behalf of this company, and we would like to order furniture. Please send us your catalog to enable us to place our orders. Thanking you, looking forward to your early reply. बस। तो उसका जवाब क्या हो सकता है? We are pleased to। सब्जेक्ट लाइन क्या रहेगा? उसमें इनसाइड एड्रेस आपका रहेगा कि नहीं? आपका रहेगा, उनका रेफरेंस रहेगा, आपका इनसाइड एड्रेस रहेगा। सब्जेक्ट लाइन क्या रहेगा? सेंडिंग यू कैटलॉग एज रिक्वेस्टेड। So dear sir, please refer to your letter dated reference requesting us for a catalog. We are forwarding our catalog for your kind consideration. थैंकिंग यू। बस दो चार लाइनें, लेकिन 2-4 लाइनें भी बिल्कुल क्रिस्प होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है? बड़े लॉन्ग लार्ज लेटर्स नहीं होते हैं, बट टू द पॉइंट होना चाहिए, राइट? दैट्स इट फॉर टुडे। सो विल कंटिन्यू टू राइट सवाल एंड जवाब। एक लेटर लिखेंगे, फिर हम गोदरेज इंडिया लिमिटेड बंद करके जवाब देंगे, फिर लेटर राइटिंग चलता रहेगा, राइट? इन द नेक्स्ट क्लास विल टेक अ लुक एट व्हाट आर रिपीट ऑर्डर्स एंड व्हाट आर रूटीन ऑर्डर्स। यस, क्या? हाँ, मतलब नेक्स्ट क्लास में तो आई एम टॉकिंग अबाउट मंडे, एंड फॉर द टाइम बीइंग आपकी जो मॉड्यूल है उसको खोल के देख लीजिएगा कि ऑर्डर लेटर, रिपीट लेटर, रूटीन लेटर्स क्या है। That's it for today.